Hello students, continuing further in this 8th lecture on matrices, let's begin by taking a subjective and conceptual question which says if ABC equals to P and matrix A is a square matrix of order 3 by 3, then prove that A is orthogonal if and only if when ABC are the roots of the cubic equation x cube plus minus x square minus p equals to 0. Now since in the information it is already given that ABC are the roots of this cubic equation, then we know what will be the sum of the roots. The sum of the roots is a plus b plus c, which is plus minus 1, you know that. And if I take what is the sum of the product of the roots taken 2 at a time, ABC रूट्स में कोई दो रूट्स का प्रोडक्ट का सम टेकन 2 at a time will be AB plus BC plus CA, and that will be equals to what? Coefficient of x here is missing, so that is 0, so it will be 0, and product of the three roots is already given to be as P. So we have all the required information. Yes, now what we have to show that this matrix A is orthogonal. For A to be orthogonal, we need to find A transpose. So what is your A transpose? First row becomes first column, second row becomes second column, third row by reversal becomes third column. So that's your transpose. Now for A to be orthogonal, we need to take the product of matrix A with its transpose. So let us evaluate this product. ABC, CAB, BCA, ACB, BAC, CBA, and what this product comes out to be. So you can take, multiply the row elements of the prefactor with the column elements of the post factor turnwise. So we find A square plus B square plus C square, then AB plus BC plus CA, A13 also as AB plus BC plus CA. Similarly, it is AB plus BC plus CA, A square plus B square plus C square, and again. So eventually let me write the product. Now this A square, so we need to find this A square plus B square plus C square. So we know A plus B plus C whole square is A square plus B square plus C square plus twice of AB plus BC plus CA. AB plus BC plus CA is 0. A plus B plus C is plus minus 1 square. So your A square plus B square plus C square comes out to be as the square of plus minus 1 is 1. So we can substitute it over here. We can substitute A square plus B square plus C square as 1, AB plus BC plus CA as 0. So this comes out to be as 1 0 0 0 1 0 0 0 1, which is I3. So since the product of the matrix A with its transpose is equals to identity matrix, so we know surely that matrix A is an orthogonal matrix. That's what we had to prove, and we have proven it. Yes, note it down. Taking up another practice problem. So the question says an n by n order matrix is formed by using the elements 0, 1 and minus 1. Then the number of such matrices which are skew symmetric is option A, n into n minus 1 by 2, B,
n minus 1 whole square, c 2 raised to power n into n minus 1 by 2, d 3 raised to power n into n minus 1 by 2. Number means you have to find such possible matrices, number of such possible matrices. So we know order of matrix A is, the given matrix is n by n, and it is skew symmetric. Total elements in this matrix will be n square. Out of this total n square elements, we know since this matrix is skew symmetric, then all the diagonal elements are 0. Diagonal elements means AII, position elements is 0. What is their number? How many number of such elements are 0? This is n, since order is n by n, isn't it? तो जितने रोज हैं या कॉलम्स हैं उतने आपके डायगोनल एलिमेंट्स होंगे और सभी 0 होंगे. एंड ऑल्सो what will be the number of upper triangular, either upper triangular elements or lower triangular elements? Can we find it out? upper triangular elements का मतलब aij for I less than j. इसका नंबर कितना होगा? ऑब्वियसली इक्वल नंबर होते हैं, ये आपको पता ही है. जितने अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स होते हैं उतने ही लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स भी होते हैं. तो कितना इनका नंबर होता है? वी ऑलरेडी नो अबाउट इट, इज n स्क्वायर माइनस n बाय 2. टोटल में से डायगोनल एलिमेंट्स निकाल दो, तो जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो n स्क्वायर माइनस n होंगे और इक्वली डिवाइड होंगे into upper triangular and lower triangular, so it is divided by 2. Now the total number of upper triangular elements, why we are finding the upper triangular and lower triangular elements? So we know that skew symmetric के लिए condition क्या होती है? aij plus aji equals to 0. तो अगर मुझे इसका नंबर पता है तो ये तो उसके साइन रिवर्सल ही होंगे ना एलिमेंट्स. या मैं ये भी कह सकता हूँ स्क्यू सिमेट्रिक में जो अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स का सम है और लोअर ट्रायंगुलर के एलिमेंट्स का सम है, उनका सिर्फ साइन रिवर्स होता है. मतलब अगर सम 5 है तो लोअर ट्रायंगुलर का -5 होगा, तो इनका सम लेने पे वो सम हमेशा 0 हो जाएगा. नंबर ऑफ अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स, जितने अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स हैं उनका सम करने पर, जितने लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स हैं उनका सम करने पे, ये दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे के ऑपोजिट साइंस की वैल्यूज़ होती हैं. यस, तो ये इतना नंबर है और ये इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और हर एलिमेंट कितने वैल्यूज़ टेकअप कर सकता है. क्योंकि हमको नंबर जाना है तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगेगा यहाँ. सो दैट ईच ऑफ दीज n square minus n by 2 number of elements can take values 0, 1 and -1 in 3 different ways. So by फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल अगर लगेगा, कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल लगने वाला है? मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. क्या होगा? हर एलिमेंट 3 वेज में वैल्यू सेलेक्ट कर सकता है. और कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं आपके पास? द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस जो हम लोग बना सकते हैं क्या होंगे? 3 into 3 into 3 कितने? अप टू n स्क्वायर माइनस n बाई 2 टर्म्स ये प्रोडक्ट जाएगा, विच इज़ 3 raised to power n square minus n by 2. So your answer is option D. Yes. और आपके लिए एक काम है इसी में, हमने नंबर ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस आपको कहे, तो फॉर द अबव सिचुएशन
you try and find the total number of such matrices which are symmetric ये आपके लिए एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम समझ लो. Yes, next continuing with another topic which is adjoint of a matrix. Obviously, adjoint is a term which is related to only to square matrices. तो एडजॉइंट हम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का एडजॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता. यस, और स्क्वायर मैट्रिक्स में भी हम लोग समझते हैं जो सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि वो नॉन इन्वर्टिबल होता है, एक तरह से उसकी इम्पोर्टेंस नहीं होती, तो इसीलिए हम लोग ये कह सकते हैं नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स या इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के केस का में हम लोग एडजॉइंट पढ़ते हैं. तो अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर होना होगा, तब हम उसका एडजॉइंट फाइंड कर सकते हैं. हाउ इट इज़ डिफाइंड, तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन. तो एडजॉइंट को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, तो मैंने ऑलरेडी लिखा, स्मॉल एडजॉइंट के पहले 3 लेटर्स वो भी स्मॉल केस लोअर केस में स्मॉल लेटर्स, तो ए डी जे ऑफ, दैट मीन्स एडजॉइंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ए. कई बार आपको कुछ ओल्ड बुक्स में, पुरानी बुक्स में ए को कैपिटल ए में भी लिखा मिल सकता है, सो यू नीड नॉट गेट कन्फ्यूज. तो डेफिनेशन क्या कहता है, तो डेफिनेशन कहता है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट किसके बराबर होता है, तो इट इज़ बेसिकली हम एक कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाते हैं. इट इज़ द ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ, तो सी आई जे क्या है, एक कोफैक्टर मैट्रिक्स है. और कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या है, cofactor matrix which consists of cofactor of the elements aij of matrix A. मैट्रिक्स A के A में जितने एलिमेंट्स हैं उनका कोफैक्टर निकाल के हम एक कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाते हैं. यस, और उसका ट्रांसपोज हमको मैट्रिक्स A का एडजॉइंट देता है. ये तो आप लोग जान भी रहे हैं. तो यहाँ से दो टर्मिनोलॉजीज आपके या 2 डेफिनेशंस इंट्रोड्यूस होती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर्स. माइनर्स एंड कोफैक्टर्स. ये आप लोग डिटर्मिनेंट्स में इन डेफिनेशंस को पढ़ते हैं और पढ़ी होगी. तो माइनर क्या कहता है, माइनर या कोफैक्टर सबसे पहले तो हम लोग निकालते हैं किसी एलिमेंट का होता है, एलिमेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स. चूँकि हम लोग डिटर्मिनेंट चैप्टर में पढ़ते हैं इसको, इन 2 टर्म्स को, प्लीज़ डू नॉट मिसअंडरस्टैंड कि माइनर एंड कोफैक्टर हम लोग किसी डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स का निकालते हैं, हम लोग मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का माइनर और कोफैक्टर निकालते हैं. तो यहाँ मैं ये इसीलिए इंट्रोड्यूस करते हुए ये बात कह रहा हूँ इंट्रोडक्शन में ही कि माइनर और कोफैक्टर निकाला जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का, ना कि डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स का. क्या होता है, तो अगर मैं डेफिनेशन से देखूँ तो डेफिनेशन कहता है माइनर, तो एम आई जे अगर लिखता हूँ तो ऑब्वियसली इसका मतलब समझ सकते हो, इसका मतलब होता है कि माइनर ऑफ एलिमेंट ए आई जे.
minor of element aij of square matrix A, of square matrix A, and that is equals to the determinant. तो determinant का sign, determinant of the square submatrix of order, A का ऑर्डर कितना था? तो A का ऑर्डर था n/n, तो इस सब मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? स्क्वायर सब मैट्रिक्स n-1 ऑर्डर का होगा, ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग द ith रो एंड द jth कॉलम in square matrix A. बेस्ट रहेगा. एंड को फैक्टर उसी की डेफिनेशन में अगर मैं कंटिन्यू करूँ तो इट विल बी -1 raised to power I plus j into the minor. That is, it is mij if cofactor will be equals to the minor if ये जो सम है I plus j का ये इवन हो. अगर -1 की इवन पावर होगी तो ये +1 होता है, और -1 की ऑड पावर -1 होता है. तो बेसिकली क्या करते हैं, कोफैक्टर इज फॉर्म्ड जब हम माइनर को साइन स्कीम के साथ जोड़ दें, तो उसी को हम लोग कोफैक्टर कहते हैं, isn't it? अगर साइन स्कीम के साथ माइनर को रिप्रेजेंट किया जाए तो उसी को हम लोग कोफैक्टर कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक्स ए मैं 2/2 ऑर्डर का ले रहा हूँ, 4 -7 -3 2. अब मैं इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट्स हैं. एलिमेंट्स हम लोग एलिमेंट्स के निकालते हैं, तो अगर मुझे माइनर निकालने हैं तो चारों एलिमेंट के एक माइनर, मतलब 4 माइनर्स निकलेंगे एंड 4 कोफैक्टर्स होंगे. तो M11 बाय डेफिनेशन एज वी नो इज दी, तो क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को रिमूव कर देंगे, है ना. तो रिमूव करने पे क्या बच रहा है, और उसका उस जो स्क्वायर सब मैट्रिक्स बचेगा, तो 2 बच रहा है स्क्वायर सब मैट्रिक्स जिसमें एक ही एलिमेंट है, और इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं. तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? 2. और अगर इसी का कोफैक्टर निकालते हैं तो कोफैक्टर क्या होगा? इट विल बी -1 raised to power 1 + 1 into M11 बाय द डेफिनेशन, isn't it? और ये सम इवन है तो किसके बराबर है? यहाँ इस एलिमेंट 2 का जो माइनर है वो 2 था, तो कोफैक्टर भी क्या आ रहा है? माइनर के बराबर आ रहा है, विच इज़ 2. सिमिलरली एलिमेंट पोजीशन एट A12, मतलब -7 का कोफैक्टर क्या होगा, माइनर क्या होगा? तो -7 का कोफैक्टर होगा, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम जब आप डिटर्मिनेंट ऑफ -3 विच इज़, तो इसका कोफैक्टर, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये सम ऑड है, तो ऑड -1 into -3 विच इज़ 3. सिमिलरली M21 भी क्या होगा? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम इट विल बी -7, तो C21 विल बी अगेन ऑड है सम, which is 7. Similarly M22 which is 4, it will be just 4.
तो ये आपके माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो एडजॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है? तो कंटिन्यूइंग विद द डेफिनेशन ऑफ एडजॉइंट, तो हमने अगर मुझे इसी मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट निकालना है तो मैंने सारे कोफैक्टर्स निकाल लिए। तो मैं एक कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाऊंगा कंप्राइजिंग ऑफ द कोफैक्टर्स दैट आई हैव फाउंड ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए। And adjoint of this matrix A will be the transpose of this cofactor matrix। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का रिवर्सल लेन करने पे, ट्रांसपोज करने पे हमको उसका एडजॉइंट मिल जाता है। दैट्स व्हाट द डेफिनेशन सेज। तो यहाँ से एक और बात समझ आ रही है कि अगर मैट्रिक्स ए देखें तो मैट्रिक्स ए था मेरा 4 -7 -3 2, और इसका एडजॉइंट हमने जो निकाला 3 4, ये आया एडजॉइंट। तो यहीं से हम लोग एक बात कह सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ नोट दैट द एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2 का एडजॉइंट हम डायरेक्टली उसके एलिमेंट से लिख सकते हैं as can be directly written as, can be directly found as। तो क्या करेंगे, हमको बस डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना है। आप देख रहे हैं यहाँ डायगोनल एलिमेंट्स बस इंटरचेंज हुए। तो सबसे पहले बाय इंटरचेंजिंग the position of the diagonal elements with each other। सेकेंडली डायगोनल एलिमेंट्स इंटरचेंज करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ A11 A22 की जगह गया और A22 A11 की जगह है, तो 2 4 हो गया। जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं तो यहाँ -7 का क्या हो गया 7 हो गया और -3 का 3 हो गया, तो साइन रिवर्सल हो रहा है। तो बाय रिवर्सिंग द साइन ऑफ द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन डायगोनल कह लो या ये मेरे सेकेंडरी डायगोनल भी होते हैं। अगर ये प्राइमरी या प्रिंसिपल डायगोनल है, मेन डायगोनल है, लीडिंग डायगोनल है, तो ये मेरे प्राइमरी सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स हैं। सो अगर मेरा मैट्रिक्स ए था ऑफ ऑर्डर 2x2, तो एडजॉइंट ऑफ ए कैन बी रिटन एज, अब इनका पोजीशन इंटरचेंज कर दीजिए। A22 की जगह A11 आ जाएगा और A11 की जगह A22 आ जाएगा। सिमिलरली जो आपके सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनका साइन रिवर्सल, A12 विल बिकम -A12 एंड A21 विल बिकम -A21। इस तरह से हम लोग एडजॉइंट लिखा जा सकता है। यस, सो इफ़ आई गिव यू ए प्रैक्टिस प्रॉब्लम, इसको वर्बली कर सकते हैं कि मैट्रिक्स एस दिया है ऑफ ऑर्डर 2x2 एलिमेंट्स हैं ABCD, एडजॉइंट निकालना है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो एडजॉइंट विल बी फाउंड बाय इंटरचेंजिंग, जहाँ आपके डायगोनल एलिमेंट्स इंटरचेंज हो रहे हैं जो कि यहाँ हो रहा है, एंड रिवर्सिंग द साइन ऑफ द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो योर ऑप्शन इज बी। ठीक है, एंड अनदर प्रैक्टिस प्रॉब्लम यू कैन टेक एज होमवर्क कि आप फाइंड करें द एडजॉइंट ऑफ ए इफ
matrix A is given to be as 1 1 1 2 1 minus 3 minus 1 2 3. Yes. Continuing with, in this question it says that matrix A is given to be as 2 by 2 order का है, as 2 minus 3 minus 4 1. Then you have to find the adjoint of 3a square plus 12a amongst this option. Now before I find the adjoint, if I ask what will be the order of 3a square plus 12a, अगर मैट्रिक्स A का ऑर्डर है 2 by 2 तो ऑब्वियसली a स्क्वायर का ऑर्डर भी 2 by 2 होगा, तो 3a स्क्वायर का भी ऑर्डर 2 by 2 और 12a भी 2 by 2, तो दिस इज ऑल्सो ऑफ ऑर्डर 2 by 2. तो इवेंचुअली हमको 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स ही मिलेगा, और 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का हम लोग एडजॉइंट निकालना जानते हैं. तो बिफोर वी फाइंड द एडजॉइंट, लेट अस इवैल्यूएट व्हाट दिस 2 by 2 मैट्रिक्स विल बी. a स्क्वायर विल बी a इंटू a मैट्रिक्स दिया ही हुआ है, तो क्या आएगा ये प्रोडक्ट लेने पर 4 प्लस 12 कितना हो जाएगा 16 माइनस 6, दिस इज माइनस 9 माइनस 12 13. अब ये निकल के क्या आएगा, इवेंचुअली दिस विल कम आउट टू बी एज 2 by 2 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स आएगा वो होगा 72 माइनस 63 एलिमेंट्स जो होंगे माइनस 84 51. अब इसका एडजॉइंट निकालना है, तो क्या होगा, ये दोनों इंटरचेंज कहाँ हो रहा है, इंटरचेंज यहाँ नज़र आ रहा है और यहाँ नज़र आ रहा है, तो ये दो ऑप्शंस तो पहले ही गए, ये इंटरचेंज हो रहा है. और साइन रिवर्सल कहाँ हो रहा है, तो साइन रिवर्सल भी यहाँ हो रहा है. सो ऑब्वियसली योर बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. यस. नाउ कंटिन्यूइंग विद द प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट. ऑब्वियसली जब एडजॉइंट रिलेटेड है विथ स्क्वायर मैट्रिक्स तो इसकी प्रॉपर्टीज़ भी स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड है. सो ऑब्वियसली ए इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ए ऑफ ऑर्डर n by n, ये वैलिड होगा. तो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आती है विच इज़ ऑल्सो द बेसिस ऑफ द डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इट सेज दैट that the product of any matrix with its adjoint is commutative. सबसे पहले तो मैट्रिक्स प्रोडक्ट क्या है, कॉम्यूटेटिव है. इट ओबेज कॉम्यूटेटिव लॉ. और किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल्स टू द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन. आई एन क्या है, तो आई एन यू नो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n by n. मतलब अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर गिवन है तो वी कैन थ्रू दिस प्रोडक्ट, या यहाँ इसका ऑर्डर कितना होगा, n by n ऑर्डर होगा. यस और नो. तो हम लोग मैट्रिक्स ए का भी ऑर्डर बता सकते हैं, दैट इट विल बी, अगर ऑर्डर नहीं गिवन है तो इजीली वी कैन प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए. ठीक है. तो दो खासियत है इस प्रॉपर्टी की. सबसे पहले तो ये एक हमारा एक केस है जहाँ प्रोडक्ट मैट्रिक्स प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव हो रहा है. दूसरा, ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन है, ये अगर आपको यहाँ दिस इज़ नोन टू यू और गिवन टू यू,
तो हम लोग और मैट्रिक्स ए का ऑर्डर प्रेडिक्ट कर सकते हैं या फाइंड बताया जा सकता है सिर्फ इसको विजुअलाइज करके ही। ठीक है, तो यही ये आपका बेसिस है। दिस प्रॉपर्टी इट इज ऑल्सो द बेसिस ऑफ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स और इन्वर्टिबल मैट्रिसेस या इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। Let me introduce that also. So what is inverse of a matrix? Inverse of a matrix or invertible matrix. Inverse is again a concept related with square matrix. तो square matrix का inverse होता है. Inverse can also be called as, मैं कह सकता हूँ inverse of a square matrix या reciprocal of a square matrix. और यहीं से आपकी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की कंडीशन भी आती है कि सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इन्वर्स, तो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n/n इज इन्वर्टिबल, दैट इज A इनवर्स एग्जिस्ट। तो क्या कंडीशन है, क्या प्राइमरी कंडीशंस हैं आपकी? तो इफ एंड ओनली इफ सबसे पहले उसको नॉन सिंगुलर होना होगा। इसीलिए मैं कह सकता हूँ इनवर्स इज ए कंसेप्ट रिलेटेड टू ओनली नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। जब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कह रहा हूँ तो ऑब्वियसली स्क्वायर मैट्रिक्स ही नॉन सिंगुलर होगा। तो डेफिनेशन क्या कहता है, दैट इनवर्स जो है इट सेज दैट देयर एग्जिस्ट अनदर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स B of the same order as matrix A, as non-singular matrix A, such that the matrix product of A with B and B with A is commutative and that equals to the identity matrix. ये आपकी बेसिक कंडीशन है कि AB equals to BA, AB equals to BA equals to identity matrix. Then we say that B is the inverse of A or A is the inverse of B. दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट अगर कॉम्यूटेटिव है और वो कॉम्यूटेटिव प्रोडक्ट किसके बराबर हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, दो स्क्वायर मैट्रिसेस का प्रोडक्ट, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस का प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो, देन वी से दैट द टू मैट्रिसेस आर इनवर्स मैट्रिसेस ऑफ ईच अदर। तो चाहे मैं कहूँ कि B A का इन्वर्स है, चाहे A B का इन्वर्स है, यस। तो यहाँ भी आपको नज़र आ रहा है दैट द प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। तो जो हम लोग ने एक्सेप्शंस किए थे जहाँ मैट्रिक्स प्रोडक्ट था, तो उसमें हम लोग ने ये केस ज़रूर डिस्कस किया था। अब व्हाट इज़ द रीज़न दैट ये कंडीशन आई, तो क्यों मैंने कहा कि जो प्रॉपर्टी थी एडजॉइंट की वो बेसिस फॉर्म करता है। कोई आपसे पूछेगा कि क्या रीज़न है कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को या मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर ही होना होगा, व्हाट इज़ द रीजन इन्वर्टिबल के लिए, कहाँ से कंडीशन आ रही है? तो कंडीशन आ रही है इस प्रॉपर्टी से जो ऑलरेडी हम लोग अभी A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और आई कैन से एडजॉइंट ऑफ ए
का प्रोडक्ट विथ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन. अब दिस इज ए रियल वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए. तो अगर मैं इस पूरी इक्वलिटी कंडीशन में को डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करूं, सो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, so what do we get? A into adjoint of A upon determinant of A equals to adjoint of A upon determinant of A into A is equals to In. और अगर आप प्रॉपर्टी से देखें तो ये मेरा मैट्रिक्स B हो सकता है कि नहीं. That means B equals to A inverse and that A inverse equals to adjoint of A upon determinant of A. Yes or no? तो यहीं से आपका ये adjoint मेथड भी आता है, जो सबसे बेसिक मेथड है टू फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स. Thus B equals to A inverse and this A inverse will exist if and only if when, since ये डिनोमिनेटर में है, इसको नॉन ज़ीरो होना होगा. यहीं से आता है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही इन्वर्टिबल होते हैं. इसे दैट नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस are also called as non-singular matrices are also called as invertible matrices. Yes. Carrying on with this next property related to adjoint, it says that the adjoint of the transpose of any square matrix A is equals to the transpose of the adjoint of A. That is, हम लोग ये भी कह सकते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स के एडजॉइंट का अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाता है ओवर दैट मैट्रिक्स. सो द ट्रांसपोज is distributive over the adjoint for any square matrix A. तीसरी प्रॉपर्टी is the रिवर्सल लॉ ऑफ एडजॉइंट्स. रिवर्सल लॉ हम लोग ने ट्रांसपोज में पढ़ा था, अब एडजॉइंट्स में भी होता है रिवर्सल लॉ दैट द एडजॉइंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स ए एंड विथ बी मैट्रिक्स बी इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए. सिमिलरली अगर तीन मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ए बी सी का प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है तो उनके प्रोडक्ट का एडजॉइंट क्या होगा? बाय रिवर्सल लॉ इट विल बी एडजॉइंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स सी विद द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बी एंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए. Yes.